Can you guys hear me? Is there any background noise? Okay, great. Hmm. Is the screen visible to everybody? All right, let's start our session with Surah Al-Baqarah, ayat number 185. The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran, a guidance for the people and clear proof of guidance and criterion. So whoever sights the new moon of the month, let him fast it. Since it's Ramadan, and you guys know that usually people finish Quran in this month, so you guys should do that too. Let's move on to my introduction. Let me hold on. Let me just. Okay. Most of you already know me. My name is Abdul Basit Khan. I'm from Department of Cybersecurity. I usually play games, watch anime or Hollywood movies, and I've done a lot of certifications. Here are a few certifications that I've done. Let me admit more of you guys. Okay. All right. I've done quite a few certifications. You guys can do these too. This one was done from National Cybersecurity Training Program. It's a national training program in Pakistan. And then there's another one, Network Defense and Cyber Operation. Most of you guys may have heard of Udemy. You guys can do multiple courses from Udemy for free. And then there is INE, it's a paid website. And then there is Hack the Box, which you guys are gonna hear really soon. And try Hack Me, of course. Okay. Moving on to what cybersecurity is. Cybersecurity is the practice of defending computers, servers, mobile devices, electronic systems from malicious attacks. It is also known as information technology security or electronic information security. That was the basic definition. If someone ever asks you what's the definition of cybersecurity, like तुम्हें इतना सब कुछ आता है but तुम्हें definition ना आती हो तो फिर then that's gonna be weird. All right. So moving on with an example for explaining cybersecurity to you guys. This guy's called Kakashi. He's my friend. He loves reading books. He was once in a coffee shop. He connected to free Wi-Fi. He went to an online bookstore and purchased a book. He entered his credit card credentials, and those credentials got saved to the cloud. And then, unfortunately for Kakashi, there was another guy in the coffee shop. He was intercepting all of the data that was going through that free Wi-Fi. He intercepted the data and found that Kakashi had entered credit card credentials. So he took those credentials and saved them, and transferred all the money of Kakashi to his own personal account. Um, what actually happened here was a cyber crime. All right. Um, what Kakashi did was he connected to free Wi-Fi, which you guys mostly see in
food courts or restaurants, malls, or even airport, there's free Wi-Fi available. So he connected to that, and since everyone has access to it and it's not secure, a hacker also connected to it. Moreover, not only that he connected, he also entered his credit card credentials and saved them to the cloud, which made it more easier for him, for the hacker, to get access to. That was cybersecurity, cybercrime. Now, what cybersecurity is all about? There's a hacker. This hacker, they're gonna track him. They're gonna go through all the payment methods he used. They're gonna talk to the bank owner. They're gonna talk to the bank management. They're gonna find the IP addresses that were linked to it. They're gonna search everything. They're gonna go to this website, scrape it, and everything. This is what cybersecurity is all about. Now, moving on to what kind of security they provide. Now, before we move on to this, let me just see if there are more students waiting to be joined. Um, right. I don't think so that there's anyone else. Yep, copy ninja can't be hacked, but still. Anyways, everyone's here. No one's in the waiting list. Great. 46 students. That's great. What kind of security they provide? One, website penetration testing. That's kind of website security. You go to online websites, you browse internet, you go to Facebook, Google, um, multiple websites, Pinterest, Instagram, or whatever website that is. Since it has your ID, it has your personal private stuff, it needs to be protected. Now, um, that's one kind of security they provide. Another is application penetration testing. Mobile applications that you use on your mobile phone. For example, if you're playing a game on your mobile phone or something else, if you're using a different, if you're using a password manager on your mobile phone, then that's one security they provide. What they actually do in penetration testing, hold on guys, let me just take in the guy that just came. Okay, Mohammed Samir, admit. So what happens in penetration testing is that they test the security by hacking it. They try to hack your website or your application or whatever that is, and if they are able to hack it, then they are gonna tell you that we did this and that's how we got into your server and that's how we got into your database. Now moving on to the next, infrastructure penetration testing. इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पूरी पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, इंटरनेट डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे इंटरनेट पॉइंट्स होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिजिटल डिवाइसेस. तो उन सबको एक जगह पे कंट्रोल करना, उन सबको एक साथ मॉनिटर करना, दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन टेस्टिंग. और नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी इसी के अंदर आ जाती है. वाईफाई डिवाइसेस लगी होती हैं आपकी पूरी बिल्डिंग के अंदर, चेकिंग इफ दे आर सिक्योर और नो, दैट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर पेनिट्रेशन टेस्टिंग. नाउ कमिंग ऑन टू डिजिटल फॉरेंसिक्स. डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या होता है? हैकिंग हो गई, सब कुछ हो गया, काम खत्म. नाउ द थिंग दैट कम्स अप इज डिजिटल फॉरेंसिक्स. जो फॉरेंसिक्स वाले लोग होंगे वो आएंगे, चेक करेंगे कि आपने कहाँ कहाँ लॉग इन किया, आपने कहाँ कहाँ क्या लिखा, कौन से की स्ट्रोक्स आपने किया, कौन सी कीज प्रेस करी आपने, और कौन कौन सी वेबसाइट्स विजिट करी आपने. ये सब चीज़ें देखेंगे. आपको कोई ईमेल आई या नहीं आई. फॉर एग्जांपल, आपने जो है कोई ईमेल खोली और उसके अंदर से आपने कुछ डाउनलोड किया, तो उससे क्या होगा कि आपके, हो सकता है, लाइक उससे होगा नहीं, हो सकता है कि उसके थ्रू जो है, उस ईमेल के थ्रू, डाउनलोड करने के थ्रू कोई फाइल आपके कंप्यूटर में वायरस आ गया हो जिससे सारे कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो गए हो. तो डिजिटल फॉरेंसिक्स में क्या होता है, वो लोग जो है आपकी सारी फाइल्स देखते हैं और उनको चेक करते हैं कि कोई वायरस तो नहीं था इन फाइल्स में, एक्सेट्रा. डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन, ऑल्सो नोन एज DRP फॉर शॉर्ट. इसमें क्या होता है, आपकी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दाऊद यूनिवर्सिटी. दाऊद यूनिवर्सिटी है, दे कैन गेट द सर्विस ऑफ डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन. कैसे? इसमें क्या होगा, अब दाऊद यूनिवर्सिटी के बारे में कोई भी बंदा, कोई भी गलत कुछ पोस्ट करता है, कोई गलत कमेंट पोस्ट करता है, कोई गलत पोस्ट डाल देता है सोशल मीडिया पर,
जिससे दाऊद यूनिवर्सिटी डिफेम हो, कोई फेक पोस्ट डाल देता है जिससे दाऊद यूनिवर्सिटी डिफेम हो, या कोई दाऊद यूनिवर्सिटी का एक्स एम्प्लॉय, अब क्या पता ऐसा हो कि एक एम्प्लॉय हो, उसको निकाल दिया, उसको गुस्सा है कि भाई मुझे इन्होंने क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, तो व्हाट दे आर गोना डू, मे बी वो जाए गूगल पे और वहां पे जाके जो है दाऊद यूनिवर्सिटी के कोई पासवर्ड लीक कर दे, उसको पासवर्ड्स पता हो कि भाई मेरे अकाउंट के ये पासवर्ड से मैंने इधर से कनेक्ट किया हुआ था, वो पासवर्ड वहाँ जाके लीक कर दे, फिर क्या करेंगे? इधर आता है डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन। जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 24/7 मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी ने कुछ गलत कमेंट तो नहीं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं पड़ रहा आपका कहीं से। मोस्ट ऑफ दैट इज डन थ्रू डॉर्किंग। डॉर्किंग क्या होती है? वी आर गोना डू दैट लेटर ऑन। डॉर्किंग में होता है कि आप स्पेसिफिक कमांड्स यूज करते हो, उसके थ्रू जो है आप चेक करते हो डिफरेंट वेबसाइट्स पर कि इस वेबसाइट पे किसने कुछ तो नहीं लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे कुछ तो नहीं लिखा हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू ओसेंट। ओसेंट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस गैदरिंग। इसमें क्या होता है ओसेंट में? पब्लिकली आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बाय पब्लिकली आई मीन ये नहीं कि अब मैं किसी के इंस्टाग्राम की ओसेंट कर रहा हूँ तो मैं उसके अकाउंट पे जाऊँ, उसका बायो देखूँ, अच्छा बायो में ये लिखा हुआ है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। नॉट दैट। उसकी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, उसका फ़ोन नंबर जो उसने एंटर किया हुआ है, उसने उसकी ईमेल आईडी जो उसने एंटर की हुई है, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। आपका इंस्टाग्राम हैक करे बगैर ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि ये इस इंस्टाग्राम पे नंबर किसका है, इस इंस्टाग्राम के ऊपर जो है कौन सा ईमेल एड्रेस यूज़ हो रहा है। इन केस अगर फ़ोन नंबर पता चल जाता है तो फ़ोन नंबर को ओसेंड कैसे करेंगे? फ़ोन नंबर के थ्रू जो है आपका सीएनआईसी पता लग जाएगा, फ़ोन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो पता लग जाएगा, सीएनआईसी किसका है वो पता लग जाएगा। फिर आपका सीएनआईसी पता लगेगा तो फिर सीएनआईसी से फिर आपके घर में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबके बारे में पता लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल, अगर कोई कन्फेशन पेज है इंस्टाग्राम पे और कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है किसी कन्फेशन का यूनिवर्सिटी के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, नॉट ऑन स्टूडेंट लेवल, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर किसी कोई इम्पैक्ट पड़ता है तो क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन वाले, दाऊद यूनिवर्सिटी वाले ओसेंड के लिए सर्विस लेंगे। वो बंदा उस इंस्टाग्राम का ओसेंड करेगा, फॉर एग्जांपल उसने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया हो तो फ़ोन नंबर निकालेंगे, उसका एड्रेस निकालेंगे, उसका सीएनआईसी निकालेंगे, उसके अम्मी अब्बू बहन भाई जितने भी लोग हैं घर में, सबका अता पता निकाल के उसके घर पहुंच जाएंगे ब्लैक वी को लेकर। तो ये होता है ओशन के अंदर। बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आज यही बताने बैठ गया तो पूरा दिन गुजर जाएगा, शहरी तक तुम लोग मेरे साथ ही बैठे रहोगे। मूविंग ऑन टू वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। Web application penetration testing is the practice of simulating attacks in an attempt to gain access to sensitive data with the purpose of determining whether a system is secure. मैंने पहले बताया था कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, हम उस चीज़ को हैक करते हैं ये पता करने के लिए कि वो चीज़ हैकेबल है कि नहीं है, वो हैक हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर हैक हो सकती है तो फिर हम बता देंगे कि हाँ भाई इस तरह से हैक हो सकती है और आप ये चीज़, ये लूप होल है, इसको सही कर लें आप लोग। वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है, आपकी वेबसाइट को हम जाएंगे, वेबसाइट देखेंगे कि कोई लूप होल्स मुझे मिल रहे हैं वेबसाइट में कि नहीं मिल रहे। लेट मी जस्ट ओपन कॉल लिनक्स इन द बैकग्राउंड। वेयर इज VMware? ओके, व्हाट्स गोना हैपन हियर कि मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा, आई एम गोना ट्राई टू हैक योर वेबसाइट बट यूजिंग वट एवर मैथड आई वांट। यूजुअली जब आप जाते हो तो मेथड आपको जो है कंपनी खुद बताती है, वेबसाइट वाला आपको खुद बताता है कि ये आपका स्कोप है, इस स्पेसिफिक स्कोप में रहते हुए आपने करना है। फॉर एग्जांपल, आप हमारी वेबसाइट पे ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स क्या होता है? आप पासवर्ड कॉम्बिनेशंस ट्राई करते हो बहुत सारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हासिल करने के लिए किसी के भी अकाउंट के, तो आप ब्रूट फोर्स नहीं कर सकते हमारी वेबसाइट पर, या आप हमारी वेबसाइट पे एक्स एक्सेस क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग नहीं यूज़ कर सकते। इस तरह की चीज़ें होती हैं वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग पर। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ कि what kind of penetration testing we're gonna do. I copied it, whatever. Let me see if I have an example of it. Hold on, let me just stop presenting for a second because I have to open my Discord. Okay.
All right. Share screen. Mohammad Sami, you're gonna get key of VMware in our next session. Next session हमारा होगा setting lab setup. Okay. Let me see if I've got it somewhere over here. Yep. Okay. There's a website called hackthisite.org. Hack this site. ये पब्लिक वेबसाइट है. ये आप लोगों को बोलते हैं कि आओ हमें हैक करो. अगर आपने हैक करना है तो आप जाओ इस वेबसाइट पे, इसको हैक करो. आप लोगों को और गुस्सा दिलाने के लिए इन्होंने जो ताकि इसको देख के आपको और गुस्सा है और आप और अच्छी तरह से उसको हैक करो. Anyways, so what I did was I tried some of my softwares on this website and I found out कि इस वेबसाइट्स के ऊपर इसने जो है टोटल 263 चीज़ें इसने सर्च करी हैं. Hold on, Kali Linux must have opened. Yeah, it's opening. इसने देखा कि भाई इट्स एन ऑटोमेटेड टूल. ये जाएगा इस वेबसाइट पे, वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा, डिफरेंट मेथड्स ट्राई करेगा. जो मेथड्स मिलते जाएंगे वो चेक करता रहेगा. हर मेथड उस पर ट्राई करेगा और उन सब मेथड्स की एक रिपोर्ट बना कर दे देगा. Why have I opened Cryptrix? Power off. Okay. जब तक वो खुल रहा है तब तक हैकर टेस्ट पे ट्राई करते हैं. Here is an interesting website, हैकर टेस्ट. इसके ऊपर लेवल्स होते हैं. आप उन लेवल्स के हिसाब से जो है हैकिंग कर सकते हो. ओके. आप लोगों ने प्रोबेबली अभी फर्स्ट सेमेस्टर में HTML पढ़ी होगी, राइट? HTML और CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत पढ़ी होगी. फर्स्ट सेमेस्टर में आपने क्या पढ़ा है अभी? कौन सी वो पढ़ी है लैंग्वेज? HTML पढ़ी ना? ओके. हाँ, बट जितनी पढ़ी है ना उतनी काफ़ी है. खैर, अभी जो हम सिखाएंगे ना वो उतने के हिसाब से सिखाएंगे. ये बहुत बेसिक्स से हैं. ओके, लेट्स मूव ऑन टू इट. Hackertest.net is your own online hacker simulation with 20 levels that require different skills to get another step of the game. This is new real life limitation will help you help you advance your security knowledge. Hackertest.net will help you improve your JavaScript, PHP and HTML and graphic thinking. JavaScript, PHP and HTML. यही आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर भी यही यूज हो रहा है. Have a spare minute, log on. Each level will provide you with a new, harder clue to find a way to get another level. Will you crack or not? Okay, level 1. Level 1 पर आते हैं हम. Hackers solve problem and build things, and they believe in freedom and voluntary mutual help. To be accepted as a hacker, you have to behave as tough. You have this kind of attitude yourself and blah, blah, blah. Motivate कर रहे हैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर. आपको जो सबसे बड़ी हिंट दी हुई है वो है जावास्क्रिप्ट, PHP एंड HTML. यहाँ पे एक पासवर्ड का इन्होंने बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आपको पासवर्ड एंटर करना है. पासवर्ड एंटर करोगे सही तो आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे. अब कैसे हैक करें? मैं कुछ भी लिख दूँ यहाँ पे, बोला है ट्राई अगेन. तो सबसे बेसिक चीज़ जो हमें अभी इस वक्त अवेलेबल है हम वो ट्राई करते हैं. हम जाएंगे पेज सोर्स पे या इंस्पेक्ट एलिमेंट पे. ठीक है. अब इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या होता है? आपका पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना वो इधर आ रहा होता है. इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने कैसे खोला? राइट क्लिक करा मैंने, इधर कहीं भी खाली जगह पे मैंने राइट क्लिक करा, यहाँ पे इंस्पेक्ट लिखा हुआ था, मैंने क्लिक करा इंस्पेक्ट एलिमेंट, स्ट्रक्चर खुल गया.
पासवर्ड क्रैक करना है, ये बिलाल पासवर्ड क्रैक करना है। ओके, तो हम आप लोगों को यूजुअली ये देखो, आप थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा इसके अंदर। HTML हम यूज़ करते हैं टैग स्टार्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग, का हम टैग यूज़ करते हैं हेडर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बॉडी का टैग यूज़ करते हैं वेबसाइट की बॉडी बनाने के लिए, राइट। इतना तो आप लोगों ने पढ़ा होगा HTML में भी, बहुत बेसिक भी पढ़ी होगी तो भी आप लोगों ने पढ़ा तो होगा ही। यहाँ पे जो इन्होंने कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है, चीज़ वगैरह डाली हुई है, स्क्रिप्ट डाली हुई है जावा स्क्रिप्ट की, इधर उन्होंने बॉडी ऑन लोड पासवर्ड, ये काम की चीज़ हमें नज़र आ रही है यहाँ पे, एक वर्ड पासवर्ड। बाकी इन्होंने जो है ये फिर से वही चीज़ वगैरह डाली हुई है नॉर्मल सी, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर करके देखेंगे, क्या पता हमें कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिल जाए। लेट्स सी, हमने पहले ही स्क्रिप्ट को एक्सपेंड किया, यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सिमुलेशन /n का टैग यूज हुआ हुआ है नेक्स्ट लाइन के लिए, और ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है वो आएगा। हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, पासवर्ड लेंथ इन्होंने दिया हुआ है, हमें टाइम आउट दिया हुआ है पासवर्ड का कि इतना लेंथ होगी, मैक्सिमम लेंथ होगी इतने पे, टाइम आउट हो जाएगा इतने लॉन्ग पासवर्ड्स पे। बॉडी पर आते हैं, यहाँ पर एक और स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट हमारे काम की नहीं थी, इसको हम बंद कर देते हैं, हमें तुमसे कोई काम नहीं है, बंद हो जाओ। अब नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे आते हैं हम। ओके, ये स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पर हमने एक वेरिएबल स्टार्ट कराया, वार के कमांड यूज करके हमने वेरिएबल लाया, हम एक न्यू ए, उसकी वैल्यू हमने क्या दी, नल। इतना तो आता है ना HTML में। ना फैजान, ब्लैंक लॉगिन से नहीं हो रहा। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा हुआ है ना कि आप लोगों को ये टैग समझ आ रहे हैं। फॉर न्यू लीड्स, अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो दैट्स ग्रेट, बट हर किसी को यहाँ पे नहीं समझ आ रहा होगा, तो मैं एकदम से जो है जंप नहीं कर सकता कि डायरेक्ट पासवर्ड कैसे करना है। यप, सही कह रहे राव। खैर, कहाँ था मैं। यप, हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा ए, उसकी वैल्यू दी हमने नल, ठीक है। हम गए, इफ का फंक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट ए डॉट सी वैल्यू इज इक्वल्स टू ए, अगर इसकी वैल्यू, ये जो वर्ड, ये जो इसने दिया है वेरिएबल, जो भी है सिंटैक्स, इसकी वैल्यू अगर ए है, इज इक्वल्स टू ए, तो हमें ये किस वेबसाइट पे लेके जाएगा, इस यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट कर देगा, मतलब हम एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। अगर नहीं है तो ये बोलेगा ट्राई अगेन। इससे क्या समझ आ रहा है, अगर पासवर्ड की वैल्यू ए है तो हम नेक्स्ट लेवल पर चले जाएंगे, पासवर्ड करेक्ट है, वरना ये बोलेगा ट्राई अगेन। अब ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, नल, इधर नल लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा नल, लॉगिन करूंगा, बूम, लेवल 2। बहुत इजी था। पेज सोर्स पे भी जाके हम देख लेते हैं, पेज सोर्स पे आपको एक्सपेंड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सब कुछ एक्सपेंड हुआ हुआ आता है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, अब हम नेक्स्ट आए थे, ये रहा फंक्शन। हमने देखा यहाँ पे पास, हम अगर यूजुअली जो स्क्रिप्ट्स होती है ना बहुत लंबी लंबी होती हैं स्क्रिप्ट्स, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल F दबाएंगे, यहाँ पे अपने काम की चीज़ ढूंढेंगे। पास कीवर्ड हमने ढूंढा, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पास कीवर्ड आ रहा है, तो ये भाई यहाँ आ रहा है कि हमारे काम की चीज़ है, या पासवर्ड पूरा कीवर्ड हम सर्च करेंगे, ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, तो इस तरह से हमें ईजी हो जाएगा। बट अभी छोटी स्क्रिप्ट है तो मैंने ऐसे ही स्क्रॉल करके आपको दिखा दिया। वेरिएबल ए इज इक्वल्स टू नल, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है इधर सब कुछ। अगर वेरिएबल ए की वैल्यू है नल, अगर ए होता है ये वेरिएबल, तो हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे सबसेट पर, नेक्स्ट लेवल पर, वरना ट्राई अगेन बोलेगा। हम लेवल 2 पर आ गए। बहुत इजी था, इजी सा था ये। हाँ, जब तक वो हो रहा है, लेट मी शो यू गाइस समथिंग एल्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू लेवल 2।
हाँ पूछो. For new leads. Weird name, but go on. Ask your question. अरे यार, no one told me to start recording for this session. गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग होती है क्या? शिट. किसी को पता है गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग होती है कि नहीं होती? रिकॉर्ड हो रही है ऑलरेडी. कहाँ रिकॉर्ड हो रही है? सेव कहाँ पर होगी? होल्ड ऑन गाइस, लेट मी जस्ट द सेटिंग्स फॉर अ सेकंड. कंफर्म रिकॉर्ड है ना? रॉ रिकॉर्डिंग हो रही है. मतलब मैं फिर ओबीएस ऑन ना करूं, वरना फिर मैं एक्सटर्नल रिकॉर्डर ऑन कर लूंगा. ठीक है, ग्रेट. थैंक यू अगेन फॉर रिकॉर्डिंग, वरना मैं तो भूल ही गया था. फॉर न्यू लीड्स, हाँ. अगर डायरेक्ट लिंक कॉपी पेस्ट करो तो आई गेस वही जाएगा. लेट्स ट्राई. यप, लेवल 2 पे जा रहे हो. बहुत बेसिक है, इसलिए आप जो है ये कर सकते हो. नहीं यार, डायरेक्ट लिंक कॉपी करने से आई डोंट थिंक सो कि होगा. चलो अब तो चले ही गया. खैर, नेक्स्ट उसमें ट्राई करते हैं. अच्छा, अब इसमें किसने क्या हमें हिंट दिए? रिफ्रेश नाउ. रिफ्रेश हम करेंगे, हमसे ये पासवर्ड मांगेगा. हम कुछ भी पासवर्ड डालते हैं, नई लेवल, नेक्स्ट लेवल पर जाएगा. हम फिर से जाएंगे व्यू पेज सोर्स. यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है. लो, ये तो स्टार्टिंग में ही आ गया. हेड, बॉडी, स्क्रिप्ट. इसने जो लैंग्वेज यूज करी हुई है जावा स्क्रिप्ट. वेरिएबल दोस्त ने इंट्रोड्यूस करा है पास और आई. पास प्रॉम्प्ट. प्रॉम्प्ट करेगा ये प्रॉम्प्ट अलर्ट जो आता है इधर ऊपर, प्लीज एंटर पासवर्ड वाला, वो प्रॉम्प्ट के लिए कमांड यूज होता है. प्लीज एंटर पासवर्ड. इफ पासवर्ड इज इक्वल्स टू दिस, देन redirect to this website. मैं इसको फॉर न्यू लीड्स कॉपी पेस्ट करके देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है. नॉट फाउंड. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है बीच में एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ रही हैं कुछ, तो इस वजह से ये नॉट फाउंड आ रहा है. नाउ ये इन्होंने हमें शुरू में ही दे दिया. पास इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट एंटर योर पासवर्ड. अगर पासवर्ड ये है तो हमें रिडायरेक्ट कर देगा, वरना हमें ये इधर ही रखेगा, इसी पेज पे रखेगा, कुछ और नहीं करेगा. ना हमें ट्राई अगेन का देगा, ना कुछ और देगा, हमें इसी पेज पे रखेगा. अब हम पासवर्ड कर लेते हैं. ये मैं जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम और एवरीवन इज बिजी आई गेस. लेवल 3 पे पहुंच गए. वाला. ओके. अगेन हम इसको ये कह रहा है ट्राई अगेन. कुछ भी पासवर्ड डालते हैं तो ट्राई अगेन करता है. व्यू पेज सोर्स. ओके. ये भी बहुत ईजी से है. मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ये, ठीक है, ताकि ये जल्दी जल्दी खत्म हो, बिकॉज वी हैव टू मूव ऑन टू अदर थिंग्स. हेड, इसके हम आएंगे हेड में. तो बॉडी डाउनलोड जावास्क्रिप्ट लिंक टू पास. ए लिंक की वैल्यू इन्होंने दी हुई है इधर. हैशटैग बहुत सारे जीरो. स्क्रिप्ट लैंग्वेज इन्होंने यूज़ की है जावा स्क्रिप्ट. फंक्शन इन्होंने यूज़ कर रहे हैं, पासवर्ड का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं. आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने अभी फंक्शन पढ़ा होगा, बट अभी देख लो ऐसे, बिकॉज अगर अभी मैं सिखाने बैठा तो बहुत लंबी हो जाएगी. फंक्शन सॉरी, पास फंक्शन इसने यूज़ करा. वेरिएबल दो इसने इंट्रोड्यूस करा है, पी डब्ल्यू एन इन गेम. पी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू विंडो डॉट डॉक्यूमेंट डॉट ए लिंक कलर. ए लिंक कलर. ठीक है. दैट्स समथिंग दैट्स क्लिकिंग ऑन आवर माइंड. पासवर्ड जो है पी डब्ल्यू, वो क्या है, इससे कुछ लिंक कर रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, इन गेम इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, प्लीज एंटर पासवर्ड. हम रिफ्रेश करते हैं तो अलर्ट प्रॉम्प्ट होता है, प्लीज एंटर पासवर्ड. हमसे वो पासवर्ड मांगता है. अगर इन गेम इज इक्वल्स टू पासवर्ड, अगर ये इसके इक्वल है तो हमें रिडायरेक्ट कर देगा दूसरी उस पर, नेक्स्ट लेवल पे, वरना हमें अलर्ट देगा ट्राई अगेन. अब हमें क्या पता ये क्या है भाई. तो यहाँ पे एक वर्ड है ए लिंक. लेट्स सी. यहाँ पे इन्होंने ए लिंक दिया हुआ है, राइट. हम ये वैल्यू डालकर देखते हैं. ये वैल्यू हमने डालकर देखी. लेवल 4 पर पहुंच गए. लेट मी शो यू गाइस समथिंग.
अच्छा, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया था, स्कैन करा था hackthesite.org को, उसने हमें क्या रिपोर्ट बना, हमें उसने क्या वो दी, वर्नरेबिलिटीज निकाल कर दी उसने, शेल इंजेक्शन वेक्टर उसने एक वर्नरेबिलिटी निकाल कर दी, एक्सट्रीम रिस्क है इसका, रेड कलर है, हाई रिस्क, ठीक है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो सकता है इसकी वजह से। एको बहुत सारी हायर रिस्क वाली जो है इसने वर्नरेबिलिटीज निकाल कर दी हैं, सी एस एस की हैं, डार्क डॉट सी एस एस, कुछ जावास्क्रिप्ट की वर्नरेबिलिटीज हैं, अराउंड इसने 43-44 इसने वर्नरेबिलिटीज निकाल कर दी हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कॉमन वो है, ट्रस्ट साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी की इसने वर्नरेबिलिटीज निकाल कर दी हैं, ये कॉमन वर्नरेबिलिटीज हैं, ठीक है। ये यूजुअली होती हैं नॉर्मल वेबसाइट्स पे होती हैं, अच्छी वेबसाइट्स जिन्होंने सिक्योर करी हुई है उन पे नहीं होती। इस तरह से इसने बहुत सारी वर्नरेबिलिटीज निकाल कर देती। तो हम क्या करते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, हम वेबसाइट के अगेंस्ट हम वल्नरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। हम टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटीज़ हैं, फिर हम वो वल्नरेबिलिटीज़ देखते हैं, उनको जो है जाके चेक करते हैं हम कि हाँ ये है भी कि नहीं है। हम उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट करने के बाद हम कंफर्म करते हैं, फिर उसको जो है हम रिपोर्ट कर देते हैं जिसकी वेबसाइट होती है, ठीक है। दिस इज वन थिंग दैट यू डू इन वल्नरेबिलिटी इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। और दूसरी चीज़, अगर आपका स्कोप ज़्यादा है तो आप इस तरह से हैकिंग करते हो, आप पासवर्ड्स क्रैक करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लेवल्स। अच्छा, यहाँ पे हमें कुछ और हिंट विंट कुछ भी नहीं दे रहा है ये, हमें इसने बोला है कि बस पासवर्ड डालो। क्या पासवर्ड डालें, कुछ भी नहीं पता। वापसी हमें पीछे पेज पे ले आया, क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पे इसने हमने कुछ किया भी नहीं, फिर बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, नेक्स्ट लेवल। चलो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, क्लिक हेयर। लेवल 5 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, लेवल 5 पासवर्ड हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं बता रहे पासवर्ड। अब चलो, अब इसका हम जैसे हमने पहले पेज सोर्स किया था वैसे करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ ना, मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, भरोसा रखो। तो राइट क्लिक नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी लगी हुई है, उसने राइट क्लिक डिसेबल करा हुआ है, वेबसाइट वालों ने राइट क्लिक डिसेबल करा हुआ है। पर चूंकि हमें राइट क्लिक डिसेबल नहीं रोक सकता, तो हमने इस वेबसाइट पे अगर हम जाके देखें तो व्यू पेज सोर्स के लिए एक शॉर्टकट की है, Ctrl+U। अगर हम ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो पेज सोर्स दिख जाएगी। अब हम इस पे जाएं अगर, सॉरी, तो यहाँ पे हम राइट क्लिक नहीं कर सकते, बट हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट की हमने यूज करी, अगेन इसके ऊपर जो है फ्रंट पे ही लिखा हुआ है, पास इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट पासवर्ड, इफ पास इज इक्वल्स टू सेव एज हेल्प्स अ लॉट, देन हमें ये जो है रिडायरेक्ट कर देगा इस लिंक पे, वरना हमें एल्स ट्राई अगेन और वापसी इस लिंक पे ले जाएगा हमें लेवल 4 पर। हम ये डाल के देखते हैं। लेवल 6 पर आ गए हम। इस पे भी हमें जो राइट क्लिक अलाउ नहीं करा हुआ, इस पे भी जो है हम Ctrl+U दबा के पेज सोर्स खोलेंगे। अच्छा, खैर, it's going to take a lot of time to show you every level, so this is the last level I'm going to show you guys. Let me see if I guess have any. Do all levels have some connection to inspection? Nawaf, what do you mean by that, connection to inspection? Like, yes, it has some connection to inspection because it's basic. अभी स्टार्टिंग का है बिल्कुल ही, तो इस वजह से जो है ये बहुत लो लेवल के ये हैं, टेस्ट है ये बहुत लो लेवल का। यूजुअली वेबसाइट्स पे ऐसा नहीं होता, बट since you're in Pakistan and you have some websites that are not that secure, तो आप उन पे जाके ये सब कुछ कर सकते हो ट्राई। लास्ट में आपको लेवल दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या किया हुआ है इन्होंने, इसके अंदर आपको यहाँ पे, चलो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हेड, दोस्त ने वेरिएबल्स क्रिएट करे, पास एंड आए। यहाँ पे इसने स्क्रिप्ट खत्म कर दी, कुछ पासवर्ड वगैरह, इफ एल्स का इसने जो है कमांड नहीं लगाया हुआ, इफ एल्स का इसने कुछ भी नहीं लगाया हुआ। नाउ मूविंग ऑन टू हैकर टेस्ट, आते हैं, अब नीचे आते हैं टेस्ट हैकिंग स्किल्स। लेवल 6 स्क्रिप्ट, इसने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट यूज करी हुई है, उस स्क्रिप्ट की सोर्स क्या है, password.js, लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट टाइप। अगर हम अगर हम सही पासवर्ड नहीं डालते तो फिर वो ट्राई अगेन पे आएगा। अब हमारे पास क्या यहाँ पे वो है हिंट, हमारे पास क्या एक सोर्स है, वो है ये password.js की फाइल, और तो कुछ हमारे यहाँ पे दिख नहीं रहा बॉडी में पासवर्ड वगैरह के नाम से। तो हम इस लिंक पे जाके देखते हैं, क्या पता इससे कुछ कुछ किया हुआ हो। तो ये देखो, वेरिएबल पास
इज इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट इफ पास इक्वल्स टू हैकर टेस्ट, देन इस पे हमें वो कर देगा रिडायरेक्ट। यहाँ पे क्या किया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने इंस्पेक्ट एलिमेंट में हमें नहीं दिखाया हुआ था, पेज सोर्स के अंदर से पासवर्ड इन्होंने छुपाया हुआ था। कैसे? एक स्क्रिप्ट यूज करके, जावा स्क्रिप्ट की, और उस जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो है इन्होंने पासवर्ड के ये डाला हुआ था, सब कुछ टैग वगैरह जो भी यूज हो रहा था। हम यहाँ से कॉपी करा हमने, गए इधर, reload, it'll ask for password, enter, and we're on level 7. Now it's gonna take a lot of time. प्लस इस नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक जो है इंस्पेक्शन से नहीं है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन का लिंक जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ। इफ यू गाइस वांट, ओके, यू गाइस शुड ट्राई दिस योरसेल्फ, ठीक है? यू गाइस आर गोना गो टू हैकर टेस्ट, we do this website and do everything I did right now, ठीक है? जो जो मैंने किया था वो आपने करना है। लेवल 7 तक पहुंचोगे आप। लेवल 7 तक मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ क्या करना है आपने। आपको मैं शुरू से बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमें कुछ काम का नजर नहीं आ रहा, ठीक है? यहाँ पे एक स्टाइल शीट यूज करी हुई है, रेफरेंस style.css। हम इसको खोल के देख लेते हैं। इधर कुछ हमें नहीं नजर आ रहा, स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है, CSS के कमांड थे कुछ, ठीक है? लास्ट वाली में हमें क्या था, हमें पासवर्ड वगैरह मिल गया था जावास्क्रिप्ट की बहुत ही फाइल। यहाँ पर इसने बॉडी में बैकग्राउंड में इसने एक इमेज इंक्लूड करी हुई है गिफ की, ठीक है? हम हैकर टेस्ट वर्ड्स लिखे हुए हैं, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं पासवर्ड, एक यहाँ पे नजर आ रहा है पासवर्ड और एक यहाँ पे नजर आ रहा है पासवर्ड, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा जहाँ से हमें पासवर्ड या यूजर नेम मिले। उन्होंने यूजर नेम के लिए इनपुट यूज किया हुआ है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम यूजर, इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम, PWD, साइज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? यहाँ पे हमें कहीं भी नहीं दिख रहा कुछ ऐसा। हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की कोई वो भी नहीं दिख रही फाइल। अब क्या करें यार, ये तो हम फंस गए, मुश्किल में आ गए। अब हमने क्या करना है, हमें ये यूज करना है। यहाँ पे देख रहे हो, इजंट इट वियर्ड? यहाँ पे इसने लिखा हुआ है बॉडी में बैकग्राउंड के अंदर एक इमेज यूज हुई हुई है, गिफ इमेज यूज हुई हुई है, बट यहाँ पे तो मुझे कोई गिफ नहीं नजर आ रही बैकग्राउंड में। दैट्स ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। इजंट दैट वियर्ड? तो व्हाट वी आर गोना डू हियर, वी आर गोना गो टू दिस गिफ, वी आर गोना सी व्हाट्स इन इट। और आप लोगों ने क्या करना है, इस गिफ के अंदर जाना है, ठीक है? ये जो है आप लोगों के पास हिंट है, आपने कैसे जाना है, क्या करना है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है? जो भी करना है करना, ये है, ट्राई करना। हो गया अच्छी बात है, नहीं आया तो कल मुझे बता देना, आई विल टेल यू गाइस हाउ टू डू दैट। खैर, ओके, दैट वाज अ लिटिल ट्यूटोरियल ऑफ वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये आप लोग वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करते हो। आप ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाओगे, आप कुछ कमांड्स रन करोगे, आप देखोगे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं। आपको वल्नरेबिलिटीज मिलेंगी, जैसे मैंने अभी दिखाया था, स्टिल देयर, हाँ, वल्नरेबिलिटीज मिली आपको यहाँ पर, ठीक है? आपने देखी ये वल्नरेबिलिटीज, इनको कंफर्म करा। मैन्युअली आपने करना है तो मैन्युअली, जैसे मैंने आपको हैकर टेस्ट पे करके दिखाया वैसे होती हैं। यप, यूज द शॉर्टकट कंट्रोल यू। इफ देयर इज डू ऑल द लेवल, ओके, if there is no inspect or page source, yep, your answer is here. Okay, that's what I did. I used control U as a shortcut key, or you can press F12 for inspect elements. Anyways, that was manual penetration testing, the one I did on hacker test. इस तरह की होती नहीं है, ये बहुत बेसिक थी, बट ऑब्वियसली बेसिक से एडवांस पर जाते हैं सब, सही है? नाउ मूविंग ऑन टू, ये देखो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। हमने क्या किया, वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्ट करी, हैकर टेस्ट, वेबसाइट की सिक्योरिटी टेस्ट करी। हमें पता चला कि यार हमने HTML के उसमें हम पेज सोर्स हमने यूज करा तो हमें पासवर्ड मिल गया। अब मैं कंपनी वालों को जाके बताऊंगा कि यार आपका पासवर्ड इधर रखा हुआ है, आप इसको छुपा दो किसी तरह से। दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन। लेट मी टेक अ लिटिल ब्रेक, 2 or 3 minutes ब्रेक। यार जब आप फुल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट टेस्टिंग करते हो ना, तो आप उनको सब कुछ बताते हो। यूजुअली क्या होता है, आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करोगे और उनको रिपोर्ट कर दोगे। वो क्या करेंगे, अपनी डेवलपमेंट टीम को बोलेंगे कि भाई ये देखो, ये तुमने क्या किया हुआ है। अभी तुम, अगर हमारी वेबसाइट हैक हो जाती तो तुम्हारे पैसे कट जाते।
फिर वो उस वल्नरेबिलिटी को सही करेगा. Your call ends in 10 minutes. Okay. Khair. Guys, if the call ends, rejoin it, or I'm gonna give you a new link to rejoin it. Okay. But don't go anywhere because there's still a lot left. Next class छोटी होगी, तो इस क्लास में थोड़ा सा कर लेते हैं. Yep, Hussein, level 7 is not so practical. Even these level 1 to 6 are not practical because इसमें इतना कुछ खास था नहीं. हाँ तो बिलाल, आप क्या करते हो वीएपीटी में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप उनको सपोर्ट देते हो, मिटिगेशन सपोर्ट देते हो. उसमें क्या होता है, आप उनको बताते हो कि यार इस तरह से आप अपना सिक्योर कर सकते हो सिस्टम, ये करोगे, ये ट्रिक्स हैं, आप इससे सिक्योर कर लो सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया, टिप दे दिया आपको मैंने, इस तरह से सिक्योर कर लो. फिर आई एम गोना टेक अ 2 minutes ब्रेक. ओके, you guys can take a break to eat something if you guys want to, or whatever you guys want to do. If you guys have any question about web penetration testing so far, type in the chat box. I'll answer to them in 2 minutes. अगेन आप लोग अपने क्वेश्चंस लिख दें, मैं 2 मिनट बाद आप लोगों को रिप्लाई दूंगा ताकि मेरा थोड़ा गला ठीक हो जाए, और 40 मिनट से बोल रहा हूँ मैं.
Okay, guys. Hmm. Yep. उनको सिर्फ वनरेबिलिटी फाइंड करके रिपोर्ट करनी होती है, और अगर आप पूरी वीएपीटी सर्विस दे रहे हो तो आपको मिटिगेशन भी बतानी होती है, टिप्स कि आपको कैसे उनको ये वनरेबिलिटी कैसे ठीक करनी है। यार ऑब्वियसली गूगल मीट तो ठीक है ही है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में यूआरएल भी काम आता है ऑब्वियसली, यप काम आता है। सारा खेल यूआरएल का ही होता है मोस्टली, सारा खेल तो नहीं बट यूआरएल आपको हर चीज से लिंक करते हैं। लाइक अगर आपको कोई वेबसाइट हैक करनी है तो सबसे पहले आप यूआरएल उसका दोगे किसी भी चीज को, ताकि उस चीज सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रोग्राम को पता चले कि हाँ यार ये वेबसाइट है। यप। Yes, I'm gonna be back in a minute. I'm gonna go drink water and be right back. All right, everybody. Let's get back to it. I don't know how many minutes are left. Probably 2 or 3 minutes. Maybe I don't know. Need to check them. Anyways, yep, call ends soon. 3 minutes left. Okay. What I'm gonna do is after the call ends, I'm gonna start another meeting, and you guys can join that. Okay. Moving back to my presentation. Why did I come back here? ओके मैंने डिजिटल अच्छा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एग्जांपल्स दे दिए आपको, ठीक है। अब आते हैं डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन पे। डीआरपी का मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स रीड इट फर्स्ट। DRP uses insights from CTI to proactively protect organizations from cyber attacks, irrespective of the motives, attacks vectors, or preparators. Security teams should use DRP strategies to prevent attacks instead of reactively responding to attacks after the fact. ओके। डीआरबी में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन लेवल की है एक यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली नाम है पूरे पाकिस्तान में इसका, इंटरनेशनली भी नाम है लॉ यूनिवर्सिटी का। तो इट शुड बी सिक्योर और इसका इम्पैक्ट जो है पब्लिक पे अच्छा पड़ना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय जिसको निकाल दें, उस वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो और उसके पास जो है बहुत सारे पासवर्ड्स की लिस्ट हो या कुछ भी इंटरनल सीक्रेट्स हो यूनिवर्सिटी के, क्या होगा अगर वो इंटरनल सीक्रेट्स वो जो है जाके कहीं फेसबुक पे डाल दे या इंस्टाग्राम पे डाल दे, अपना स्टोरी पे लगा दे, ऑर्गेनाइजेशन की ये चीजें जाओ जो करने करो, इन्होंने मुझे निकाल दिया। तो व्हाट व्हाट देन, फिर क्या करेंगे? इधर आता है डिजिटल रिस्क प्रोटेक्शन। अपने उन सारे क्रेडेंशियल्स को प्रोटेक्ट करना, उनको मॉनिटर करना कि उनको कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो कैसे करते हैं? वो इस तरह से करते हैं कि yep, you sure you have any question? I don't think you have any question. You raise your hand. Okay, anyways, let me continue. डीआरपी क्या होगा फिर? डीआरपी में क्या करेंगे फिर? वो लोग जो है देखेंगे, मॉनिटर करेंगे 24/7 के ये बंदा कुछ पोस्ट तो नहीं कर रहा। जैसे आपको मखसूस इदारा जो है आपको मॉनिटर करता है, आपको तो नहीं बट स्पेसिफिक लोगों को मॉनिटर करता है कि वो कुछ कर तो नहीं रहे, इसी तरह से डीआरपी वाले जो है आपको मॉनिटर करेंगे, उस एक्स एम्प्लॉय को मॉनिटर करेंगे कि वो कहीं गलत पोस्ट तो नहीं डाल